Boolean algebraic theorems. Next topic of the digital electronic subject is Boolean algebraic theorems. There are 21 theorems, and with the help of this theorem, algebraic expression can be solved easily, and these functions can be implemented with the help of logic gates. First theorem is this plus is ORing, dot sign is ending, so A ORing 0 is equal to A ending 1 is equal to 1, and A ORing 1 is equal to 1, A ending 0 is 0, or A ending A is equal to A ORing A is equal to A ending A is equal to A ORing A bar is equal to 1. और यदि 0 लेंगे A को तो 0 प्लस 0 बार 1 आएगा मेरे 1 लिया तो 1 प्लस 0 बार 1 आएगा. ये सब सॉल्व प्रूव हो जाएंगे पूरे तरह. A बार इज इक्वल टू 0 आएगा हमेशा, क्योंकि 1 लेंगे यदि तो 1 का बार 0 आ जाएगा, 0 लेंगे तो 0 बार 1 और 0 आ जाएगा. A ending B ORing C is equal to A ending B ORing A ending C. A ending B A ORing B ending C is equal to A ORing B ending A ORing C. A ORing A ending B is equal to A. ये भी एक थ्योरम है. Then A ending A ORing B is equal to A. The 13th theorem is A ending A ORing A bar ending B is equal to A ORing B, and A ending A bar ORing B is equal to AB. सब थ्योरम ये यूज होंगे, इजी हो जाएंगे इम्प्लीमेंट करना. यदि अलजेब्रिक फंक्शन है इजीली कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम. A ending B ORing A ending B bar is equal to A ending B A ORing B ending A ORing B bar is equal to A ending B ORing A bar C is equal to A ORing C ending A bar ORing B. This is 7th theorem. लिख सकते हैं हम, ये एंडिंग है यहाँ पर ORing करके लिख सकते हैं, ये ORing है यहाँ पे, यहाँ एंडिंग कर देंगे, और A के साथ में C आएगा और A बार के साथ में B आएगा. This is another theorem. A ORing B ending A or A bar ORing C is equal to A ending C ORing A bar B. 19th theorem is A ending B ORing A bar C ORing B ending C is equal to AB ending A bar C. This is the theorem number 19. 19th theorem says that A ending B ORing A bar C ORing B bar C is equal to AB ORing A bar C. एकदम सही है. और हम देख सकते हैं यदि हम A B C के वैल्यूज लेंगे 0 1 0 1 तो लेफ्ट और राइट दोनों प्रूव कर सकते हैं, और एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं. A ORing B ending A bar ORing C ending B ORing C is equal to A ORing B ending A bar ORing C. And the 21st theorem is De Morgan theorem. If ending operation is given and taking the inverse of the ending operation of ABC, then the bar is split and the operation becomes ORing operation. यदि ABC का इन्वर्स लेते हैं हम तो उसका क्या करेंगे, बार लेते हैं, तो एंडिंग ऑपरेशन है यहाँ पे, वो बार स्प्लिट हो जाएगा और ऑपरेशन ORing हो जाएगा. और यदि ORing ऑपरेशन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम या इन्वर्स ले रहे हैं तो ORing ऑपरेशन एंडिंग हो जाएंगे और बार स्प्लिट हो जाएंगे.
तो A or in B or in C bar is equal to A bar ending B bar ending C bar. So these are the basic and Boolean algebraic theorems. और ये थ्योरम कैन बी इम्प्लीमेंटेड और कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स वो सर्किट हैं जो बूलियन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को काम आते हैं, to solve the Boolean algebraic expression, to implement the Boolean algebraic expression, जिनसे हम Boolean algebraic expressions को implement कर सकते हैं, solve कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एंड गेट, सेकेंड इज और गेट, AND gate, and this is OR gate. These are the electronic circuits. These are the combination of transistor, resistor, diodes. इनके combination से जो बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं gates, logic gates. And third one is NOT gate. And by using these 3 gates, 2 gates और बन जाते हैं, उनको बोलते हैं NAND gate, यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं इनको, NAND गेट और NOR गेट। फिफ्थ इज NOR गेट। और यदि XOR ऑपरेशन और करा दें हम, उनको जो ओबे करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम XOR गेट। जिनसे हम XOR ऑपरेशन कर सकते हैं उस टाइप के गेट को क्या बोलेंगे XOR गेट। और नेक्स्ट गेट में भी XNOR गेट, और जो 7th गेट है उसको क्या बोलते हैं हम XOR गेट। ऐसे 3 बेसिक गेट्स होते हैं, इनके हेल्प से हम क्या बनाते हैं NAND गेट और NOR गेट। इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं क्योंकि इन दोनों गेट की हेल्प से यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन, एंड और नॉट, XOR XNOR, ये सारे ऑपरेशन एंड और नॉट से हो सकते हैं। तो ऐसे गेट्स को क्या बोलते हैं हम यूनिवर्सल गेट। और XOR ऑपरेशन जो गेट कर सकते हैं वो XOR गेट, और XNOR ऑपरेशन कर सकते हैं वो XNOR गेट। तो पहला देखेंगे हम एंड गेट। एंड गेट वो गेट होते हैं जो एंड ऑपरेशन कर सकते हैं। एंडिंग का मतलब क्या होता है, y = A डॉट B डॉट C डॉट N। तो एनी नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे यहाँ, तो हम 2 के लिए देखेंगे, 2 इनपुट देखते हैं। तो एंड गेट का सिंबल ये होता है और एक आउटपुट ले रहे हैं हम, एनी नंबर ऑफ आउटपुट ले सकते हैं। जैसे y = A एंडिंग B, 2 के लिए देखें। तो 2 में क्या करेंगे हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इसका ऑपरेशन देखेंगे। ट्रुथ टेबल की द ऑपरेशन ऑफ द गेट्स। तो फर्स्ट इज एंड गेट। एंड गेट में 2 इनपुट ले रहे हैं, सीरियल नंबर, these are the inputs, this is output y, inputs are A B, there are 2 inputs A and B। फर्स्ट 0 0 लेंगे, 0 0 का एंडिंग 0 आता है, और यदि 0 का 1 के साथ में एंडिंग करें तो भी 0 आता है। थर्ड 1 का 0 के साथ में एंडिंग करेंगे तो 0 आएगा। फोर्थ 1 का 1 में एंडिंग करेंगे तो 1 आएगा। ऑल इन ऑल गेट बोलते हैं, ऑल इन ऑल गेट बोलते हैं सर। जब सारे इनपुट हाई है तब आउटपुट हाई आता है। एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ एंड गेट। एंड गेट क्या बताता है कि यदि सभी इनपुट हाई हैं तभी आउटपुट हाई आएगा, और यदि एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। तो ऑल इन ऑल गेट भी बोलेंगे। इसका मतलब ऐसा है, ऐसे स्विच लगे हुए हैं सीरीज में, यदि एक भी स्विच को हम हटा दें या ऑफ कर दें तो आउटपुट 0 आएगा। यदि सभी स्विच ऑन होंगे तभी आउटपुट आएगा। ऐसे स्विच लगे हुए हैं यदि कहीं पे सप्लाई के क्रॉस, तो आउटपुट जब आएगा जब सभी ऑन होंगे। यदि एक भी स्विच ऑफ हो गया तो आउटपुट 0 आएगा। तो सच टाइप ऑफ गेट्स विच परफॉर्म द
एंड ऑपरेशन, ऐसे गेट को हम क्या कहेंगे, एंड गेट कहेंगे। और दूसरा गेट हमारा क्या है, और गेट। सेकंड गेट इज और गेट। सेकंड टाइप ऑफ गेट इज और गेट। ये टाइप ऑफ गेट है जिससे पता लगता है कि ये और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। एनी नंबर ऑफ इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, यदि 2 दिए तो आउटपुट ए और इन बी आएगा। और एन इनपुट के लिए y इक्वल टू ए और इन बी और इन सी फॉर एन इनपुट, फॉर एन इनपुट, फॉर एन इनपुट्स के लिए आउटपुट क्या आएगा, ये। और 2 के लिए y इक्वल टू ए और इन बी। इसका भी ट्रुथ टेबल देखेंगे तो ट्रुथ टेबल क्या बताता है, द ऑपरेशन ऑफ द और गेट। और गेट का ऑपरेशन देखेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा हमें, सीरियल नंबर, इनपुट्स, इनपुट्स, आउटपुट, आउटपुट इज y, इनपुट्स आर ए बी, 2 इनपुट है ए बी। यदि हमने पास 0 0 दिया तो 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 और 0 0, 0 और 1 1। यदि हमने 1 दिया और ये 0 दिया तो 1 आएगा। यदि ऑल हाई दे दिए तो हाई आएगा। ऑल 0 जब 0 होंगे तभी आउटपुट 0 होगा। यदि एक भी गेट, एक भी स्विच ऑन है तो आउटपुट आएगा। इसका मतलब ये स्विच कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए, ऐसे स्विच लगे हुए पैरेलल में स्विच है। यदि एक भी स्विच ऑन हो गया तो आउटपुट आएगा, एक भी स्विच ऑन कर दिया तो आउटपुट मिलेगा। सारे स्विच ऑफ किए जब भी हमें आउटपुट 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, एनी वन, एनी वन का मतलब कोई एक भी स्विच ऑन है तो आउटपुट हाई आएगा। ऐसे गेट्स को हम क्या कहेंगे, और गेट। और जो और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उनको क्या कहेंगे, और गेट। और जो गेट नॉट ऑपरेशन, नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट या इनवर्स, नॉट गेट, जो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो गेट को क्या कहेंगे, नॉट गेट। एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। यदि हमने इनपुट यहाँ पे ए दिया है तो आउटपुट ए बार होगा। इसका मतलब यदि हम यहाँ 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 1 आएगा, ये 1 दे रहे हैं तो आउटपुट 0 आएगा। तो इसका ट्रुथ टेबल क्या आएगा, ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉट गेट इज सीरियल नंबर, इनपुट, आउटपुट। ये देखेंगे आउटपुट 2 ही इनपुट दे सकते हैं। यहाँ 0 दिया तो 1 आएगा, 1 दिया तो 0 आएगा। यदि नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करता है कोई गेट तो उसको बोलते हैं हम नॉट गेट। एनी गेट परफॉर्म्स द नॉट ऑपरेशन इज नोन एज नॉट गेट। और यदि और ऑपरेशन और गेट, एंड ऑपरेशन एंड गेट। अब यदि हम ऑपरेशन मिक्स कर दें, 2 ऑपरेशन मिला दें तो 4th गेट आ जाएगा नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड का मतलब क्या है, एंड प्लस नॉट। एंड गेट का इन्वर्ट कर दें, एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू नैंड। यदि हम और गेट में नॉट गेट लगा दें या इन्वर्टर लगा दें तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इनवर्स ऑफ द एंड ऑपरेशन आएगा। और इन ऐसे गेट को ऐसा डिनोट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ नैंड गेट। एक बबल लगा देते हैं एंड गेट के बाद में, और 2 इनपुट यदि दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा, ए एंडिंग बी बार आएगा। इसका मतलब इसका ट्रुथ टेबल क्या आएगा, ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट इज
सीरियल नंबर, इनपुट ए बी, इनपुट 2 देंगे ए एंड बी ट्रूथ टेबल के लिए। दिस इज द ट्रूथ टेबल, सीरियल नंबर, इनपुट, और ये 2 इनपुट है, ये दिस इज बी, ये आउटपुट। और यहाँ फर्स्ट 0 0 देंगे तो 1 आएगा, यदि 0 1 देंगे तो भी 1 आएगा, 1 0 देंगे तो 1 आएगा, यदि 1 1 देंगे तो 0 आएगा। यदि एक भी 0 है इनपुट में तो आउटपुट 1 आता है NAND गेट का। All inputs are 0, then output is 0. This is NAND gate. NAND ऑपरेशन AND प्लस नॉट ओबे करेगा तो उस गेट को क्या कहेंगे हम? NAND गेट। नेक्स्ट इज NOR गेट। NOR गेट वो गेट है जो NOR ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। NOR गेट, NOR का मीनिंग ये होता है और प्लस नॉट इज इक्वल टू नॉट। इसका मीनिंग ऐसा है, और गेट का इन्वर्ट कर दें तो क्या मिलेगा हमें? नॉर गेट मिलेगा। ए बी इनपुट है, ए बी 1 8 मिलेगा, ए और इन बी। आउटपुट इसका क्या मिलेगा? ए और इन बी का बार। इन्वर्टर उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है इनपुट को, ये भी बार मिलेगा। और इसको दोनों को मिला के जो गेट बनेगा उसका सिंबल होगा, और गेट पे बबल लगा देंगे ए एंड बी, ए वाई ए और इन बी बार। इस गेट को हम क्या बोलेंगे? नॉर गेट। दिस इज द नॉर गेट ऑफ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ऑफ द नॉर गेट। नॉर गेट में ट्रूथ टेबल देखेंगे, सीरियल नंबर, एंड दिस इज इनपुट। 2 इनपुट्स देखेंगे, ज़्यादा भी देख सकते हैं। आउटपुट y। इनपुट लिए तो यदि हमने 0 0 दिया तो 0 0 बार 1 आएगा, 0 प्लस 0 0 बार 1 आएगा यहाँ। सेकेंड, यदि 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 का बार 0 आएगा। थर्ड, यदि 1 0 दिया तो भी 0 आएगा, 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0। फोर्थ, यदि 1 1 दिया तो 1 आएगा, 0। ऑल इनपुट 0 है तब आउटपुट 1 आएगा, यदि एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। दिस इज इन्वर्ट ऑफ और गेट। और गेट का अपोजिट रिएक्शन आएगा, आउटपुट आएगा। तो और गेट में एक ही इनपुट हाई होता था तो हाई आता था, लेकिन यहाँ एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट 0 आएगा। ऑल इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ और नॉर गेट। अभी 2 गेट और बचे, XOR गेट एंड XNOR गेट। XOR गेट, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और गेट जो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेगा। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होता है ए एंडिंग बी और इन ए बार एंडिंग बी इक्वल टू ए और इन बी, ऐसा डिनोट करते हैं। और इसका सिंबल ये होता है गेट का। 2 इनपुट, मे बी मोर देन 2 इनपुट, ए बी वाई इक्वल टू ए एंडिंग बी बार और इन ए बार एंडिंग बी और ए एक्स और बी। इसका आउटपुट ध्यान रखना है, जब भी 2 इनपुट अपोजिट होंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। अदरवाइज सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम, यदि हमने 0 लिया है, ए को 0 0 ले रहे हैं हम इनपुट, तो क्या होगा? 0 एंडिंग 0 और इन 0 बार एंडिंग 0, 0 1 और इन 1 0 0 आएगा। यदि हमने 1 1 इनपुट लिए तो 1 एंडिंग 1 बार
ऑरिंग 1 बार एंडिंग 1, 1 एंडिंग 0, ऑरिंग 0 एंडिंग 1, 0 ऑरिंग 0 0 आएगा। तो यदि सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 आएगा। और यदि हमारा 1 0 लिया है हमने, इनपुट कैसे लिए, 1 0 लिए, यहाँ पर रखेंगे 1 ऑरिंग बी बार, 1 एंडिंग 0 बार, ऑरिंग 1 बार एंडिंग 0, तो 1.1 आएगा। 0 का इन्वर्ट क्या आता है 1, 1 का इन्वर्ट आता है 0, 1 डॉट एंडिंग 1 आता है, 1 ऑरिंग 0 एंडिंग 0 0, 1 ऑरिंग 0 1 आएगा। तो 1 0 पे क्या आ रहा है 1 आएगा। और यदि हमने इनपुट 1 0 की जगह 0 1 ले लिए, ए क्या ले लिया हमने 0, तो वाई जाएगा 0 ऑरिंग एंडिंग 1 बार, ऑरिंग 0 बार एंडिंग 1, तो 0 0 0 का 1 1, 0 एंडिंग 0 1 0, 1 एंडिंग 1 1, 0 ऑरिंग 1 1, तो आउटपुट कितना आ गया 1। दिस इज द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन को करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ऐसे गेट को क्या कहेंगे हम, XOR गेट। एंड नेक्स्ट इज सेवंथ गेट, XNOR गेट। XNOR गेट जो XNOR ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसका मतलब क्या है, XOR ऑपरेशन का इन्वर्ट करेगा। एक बबल लगा देंगे यहाँ पे, ये सिंबल होगा XOR में y इक्वल टू a XOR b का इन्वर्ट इक्वल टू a एंडिंग b बार, a बार एंडिंग b का बार, इसको a डॉट b भी लिखते हैं XNOR ऑपरेशन। और ये इसका उल्टा ऑपरेशन होगा, जहाँ 0 इनपुट आउटपुट है वहाँ 1 आएगा, जहाँ 1 है वहाँ 0 आएगा। वैसे भी यहाँ देखेंगे इसका इन्वर्स करके लिए हमने यदि, तो ये क्या आ जाएगा 0, और यहाँ भी इन्वर्स किए हमने तो इसका इन्वर्ट भी क्या आ जाएगा 0। तो ये 0 1 पे भी 0 आएगा, 1 0 पे 0, और 0 0 पे इसका आउटपुट 1 आएगा, और 1 1 पे 0 आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में और आगे का देंगे और इनके परफॉर्मेंस देखेंगे NAND NOR गेट की, और इम्प्लीमेंट करेंगे थ्योरम्स।